गाइस व्हाट्स अप। तो S-400 बहुत जल्दी ही आने वाला है इंडिया में। वैसे तो इंडियन आउटलेट से आपको ये न्यूज़ पता चल गया होगा, लेकिन आज मैं रशियन ओर से एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि रशियंस ने ये कैसे रिपोर्ट किया। और बेसिकली रशियंस ने ऐसे ही रिपोर्ट किया कि चाइना और पाकिस्तान के पैर कांप रहे हैं कि इंडिया में S-400 आने वाला है। ये इंडिया ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि अमेरिकन सैंक्शन को इग्नोर किया है बेसिकली, और S-400 के जो डील है उस पर कायम रहा और जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और कमेंट सेक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा बेस्ट कमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। С появлением у Индии российских С-400 пакистанские ВВС превратились в ничто. Ускоренные поставки на вооружение Индии российских ЗРК С-400 «Триумф» превращают ВВС Пакистана в абсолютное ничто, поскольку любая попытка истребителей Исламабада нарушить воздушное пространство Индии или войти в воздушное пространство над спорными регионами превратится в незамедлительное их поражение. При этом нанести ответный удар Пакистан не сможет из-за большого радиуса поражения российских комплексов. Бывший главный маршал индийской авиации Бирендер Тхана провел анализ и сравнил ракеты 40H6 с оружием Рафалей. По его словам, при нанесении ударов по военным Пакистана они способны показать хорошие результаты, однако при сражении с китайской армией наиболее эффективно себя покажет вооружение Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставило издание «Актуальные новости». Экс-главный маршал Тхана остается ярым сторонником приобретения многоцелевых истребителей Франции «Рафаль». Также специалист считает, что у российских зенитно-ракетных комплексов С-400 имеются свои преимущества. По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном. Машины имеют дальность поражения, способную уничтожить самолеты соседа, такие как многофункциональные истребители F-16 и прочее. Об этом сообщает издание «Политэксперт». Следует уточнить, что согласно данным пакистанских СМИ, сама информация о том, что Россия намерена поставить в Индию свои комплексы С-400 ранее оговоренных сроков, привела пакистанцев в ярость, поскольку это даст очень серьезное преимущество Нью-Дели, особенно на фоне до сих пор сохраняющегося конфликта между двумя странами. Примечательным является даже тот факт, что в ближайшем будущем на вооружении ВВС Пакистана должны также появиться и китайские истребители пятого поколения, однако очевидно, покупка С-400 это преимущество будет полностью перечеркнуто. तो अब इमरान खान पाकिस्तानियों से कहेंगे कि देखो पहले तो आपने डरना नहीं। बट एनीवे हम थोड़ा कमेंट सेक्शन देख लेते हैं कि कमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, बस 40 जैसे कमेंट्स थे, तो उनमें से कुछ कमेंट्स सिलेक्ट करके मैं आपको सुना रहा हूँ। तो लेक्सिच ने लिखा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि भारत अपना ख्याल रख रहा है, क्योंकि भारत के आसपास उसके कई सारे शुभचिंतक हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड सरकाज़म। उसके बाद रिबाक ऑफ 79 ने लिखा है कि शूटिंग रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर काफ़ी नहीं है। उसके बाद मित्याय पोलोब ने लिखा है कि ये खुशी की खबर है। उसके बाद गायसिन अलमाज ने लिखा है कि मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, अगर रशिया और इंडिया एक साथ रहे तो बहुत शक्तिशाली होंगे। उसके बाद आर्टो ने लिखा है कि ये है इंडियन डिफेंस जनरल्स की बहादुरी, नेटो की तरह नहीं कि अमेरिका के सामने झुक जाए। उसके बाद वाइटली ने लिखा है कि ऐसे खुशी की खबरों के लिए सबको ब्लिन बांटना चाहिए। ब्लिनी जो है वो रशियन पैनकेक्स होता है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि हमें जब खुशखबरी मिलती है तो हम मिठाई बांटते हैं और वो ब्लिनी मतलब पैनकेक्स बांटते हैं, तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी तो है हम दोनों में। उसके बाद व्लादिमीर ने लिखा है कि इंडिया शुरू से ही हमारे साथ रहा है। गांधी के टाइम में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को खूब लूटा और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत खून पिया भारत का। इंडिया को ज़रूरत है खुद को डिफेंड करने की। उसके बाद डब्ल्यू ने लिखा है कि पुतिन को इस पर बिठा के भेज सकते हैं। उसके बाद ट्रिपल बी ने लिखा है कि इंडिया कभी भी हमारा दुश्मन नहीं था और इसीलिए हमें मदद करना चाहिए इंडिया की। रशिया इज स्ट्रेंथ। उसके बाद एफगानी ने लिखा है कि हेल पुतिन। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने तो पैसे देके S-400 खरीदा है, तो इसमें खुशी वाली क्या बात हुई, इंडिया ने ये इंडिजिनसली प्रोड्यूस नहीं किया। सबसे पहले बता दो कि S-400 इज़ द बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एट प्रेजेंट। आयरन डोम छोटे छोटे मिसाइल और रॉकेट्स के लिए सही है, लेकिन बड़े बड़े रॉकेट्स के लिए S-400 इज़ वे मोर इफेक्टिव। लेकिन S-400 सिस्टम खरीदने के बाद इंडिया की असली टेस्ट शुरू होगी, क्योंकि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अच्छे से स्टडी करने के बाद इंडिया को कुछ ऐसे मिसाइल्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए जो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद कर सके। चाइना ने इस पर बहुत पहले से ही काम शुरू कर दिया है और इंडिया को अभी कैचअप करना है। और इंडिया में ये काबिलियत है क्योंकि इंडिया स्पेशलाइज ऑन ICBMs। बहुत सारे ICBMs इंडिया ने खुद
अपने टेक्नोलॉजी से इंडिजिनसली डेवलप किया है DRDO ने। दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इंडिया को जल्द ही इस दिशा में काम करना शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं है कि S-400 खरीद के रिलैक्स हो गए कि अब तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पास S-400 है। और पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जियोपॉलिटिक्स में बहुत मैटर करता है। जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है वो गलत है, क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी जियोपॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आज रशिया, इजराइल या फिर इंडिया एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन, कोई भी बड़ा पॉलिसी नहीं लग सकता, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ के लोगों के बीच इतना गहरा और इतना अच्छा रिश्ता है। तो कोई भी सरकार अगर मतलब खुद के फ़ायदे के लिए, खुद मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द नेशनल इंटरेस्ट, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को, अगर कल ऐसा कोई लीडर आता है जो अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, देश के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचता है और कुछ ऐसा फैसला लेता है, तो हमारे देशों की जो जनता है रिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों के बीच जो रिश्ता है वो जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट्स की स्टांस चाहे जो भी हो, रशिया में काफ़ी सारे इंडिया सपोर्टर्स हैं और ये उनकी मीडिया की रिपोर्टिंग जैसे वो रिपोर्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन को देख के ही पता चलता है। हेटर्स भी है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन सपोर्टर्स ज़्यादा है। और रशिया में इंडिया के कितने सपोर्टर्स हैं ये आपको मेरे अगले वीडियो में पता चलेगा, जो मैं कुछ ही घंटों में अपलोड करूँगा। बेसिकली कजाकिस्तान मीडिया ने इंडिया को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ और फेक न्यूज़ फैलाई थी, लेकिन रशियंस ने इतना प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट और वो उस वीडियो को इतना रिपोर्ट किया कि वो वीडियो फिर टेक डाउन कर लिया गया। तो इंडियंस को कुछ करना भी नहीं पड़ा, रशियंस ने ही उस एंटी इंडिया वीडियो के अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट किया कि वो उस वीडियो को टेक डाउन किया गया। तो कुछ ही घंटों में वो वीडियो आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।